Students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 5, completing business message. In this message we will learn that after writing and after composing your first draft, आप अपना जब पहला ड्राफ्ट जो है कंपोज कर लेते हैं और जब पहला ड्राफ्ट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, then the next step is revising your message before sending it or posting it to any other. Before sending this message officially to any other person, you need to revise your message. आपने अपने मैसेज को जो है वो रिवाइज करना है. So this chapter will deal with all that how can we revise our first draft and how can we evaluate our first draft and how can we revise our message. So revising your message means revising your message and evaluating your first draft. It means that this is the stage after composing और आफ्टर राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट. आपने जब अपना पहला ड्राफ्ट लिख लिया, उसको कंपोज कर लिया, तो अब नेक्स्ट स्टेज जो है वो ये है कि नाउ यू नीड टू रिवाइज योर फर्स्ट ड्राफ्ट बिफोर सेंडिंग इट टू अदर्स और यू नीड टू एवेल्यूएट इट. अब रिवाइजिंग इज़ द थर्ड स्टेप एंड दिस इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ राइटिंग प्रोसेस. अगर हम राइटिंग प्रोसेस की बात करें तो उसमें जो तीसरा अहम स्टेप है वो क्या है, रिवाइजिंग है. यू नीड टू रिवाइज योर मैसेज टू अचीव optimum quality and producing proofreading and distributing it. Before you send your message, you need to proofread it, and when you proofread your message, when you revise your message, then you achieve optimum quality of your message. Careful revision improves the effectiveness of your message. When you carefully revise your message, जब आप अपने पहले ड्राफ्ट को carefully revise करते हैं तो it improves the effectiveness of your message and sends a strong message and sends a strong signal to your audience that you respect their time and you have spent your own time to revise your message, so that's why you respect their time and care about their opinion. It also gives an impression to your audience that you are very concerned to your audience. आप अपने ऑडियंस के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है, यू वैल्यू देयर टाइम, सो दैट्स वाई यू वांट टू कंपोज मैसेज विच इज़ फ्री ऑफ एनी एरर्स which and it means that you are professional and you create your message, you craft your message very carefully and you give your quality time to improve your message and then you send it. So careful revision improves the effectiveness of your message and it sends a strong signal to your reader that you respect their time and care about their opinions. For informal message, जब हम informal message की बात करते हैं, informal messages में शामिल हैं email, text messaging और IM instant messaging जिसको आप कहते हैं. For informal message to internal audience, particularly when using short message tools. अब शॉर्ट मैसेज टूल्स कौन से हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ईमेल है और इसके अलावा इंस्टेंट मैसेजिंग है. तो रिवीजन प्रोसेस जो है वो बहुत सिंपल होता है. जब आप इनफॉर्मल मैसेज की बात करते हैं, इनफॉर्मल मैसेज को रिवाइज करते हैं, देन योर रिवीजन मैसेज इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी क्विक. यू जस्ट गो थ्रू द मैसेज टू करेक्ट एनी मिस्टेक बिफोर सेंडिंग इट और पोस्टिंग इट. आप सिर्फ उसको जो है एक क्विक सा जो है वो एक सिंपली और क्विकली जो है उसको एक क्विक सी जो है वो लुक ओवर करते हैं उस मैसेज को और करेक्ट करते हैं कोई भी अगर कोई मिस्टेक है बिफोर सेंडिंग इट और पोस्टिंग इट. बट ऑन द अदर हैंड, while if you are using electronic media, you also need to focus on grammar mistakes, grammar spellings clarity and other fundamentals of good writing. Poor quality message creates an impression of poor quality thinking. Poor quality message create an impression of poor quality thinking and even minor errors can cause a confusion, frustration and delays. So this is the importance of that why do you need to revise your message after writing your first draft. आपने अपना पहला ड्राफ्ट जो है लिख लिया, सेकंड जो थर्ड स्टेज है उसमें नाउ यू नीड टू रिवाइज योर मैसेज. सो रिवाइजिंग मैसेज को रिवाइज करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जो केयरफुल रिवीजन है इट ऑल्सो इट इम्प्रूव्स द इफेक्टिवनेस ऑफ योर मैसेज एंड इट विल ऑल्सो क्रिएट्स अ गुड इम्प्रेशन टू योर ऑडियंस. Your audience will think that if you are spending your value time or your quality time to revise your message, then your readers will get an idea that you respect their time and you care about their opinions. So this is why we need to revise our draft or
our messages before sending it or before posting it. But the second thing is that I have told you कि informal message में we do not need careful revising. We can revise our message very quickly and very simply. We just can look over all the message to correct any mistakes, spelling mistake, grammar mistakes, typo errors, on all these things. पुअर क्वालिटी मैसेज जो है वो क्रिएट, उसका ड्रॉबैक ये है कि वो क्रिएट करता है एक इम्प्रेशन ऑफ पुअर क्वालिटी थिंकिंग का. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवाइजिंग your draft, evaluating your first draft and revising your message. Now the second thing is that evaluating your content. अब जब आपने अपने मैसेज को रिवाइज करना शुरू करना है आफ्टर कंपोजिंग इट, और रिवाइजिंग में जो है पहली चीज़ ये है कि यू नीड टू evaluate your content, organization and tone. When you begin the revision process, जब आप रिवीजन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, you need to focus on these three things. Number 1 is content, number 2 is organization, and number 3 is tone of your message. These three things we have already discussed while composing a business message. अभी हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने इन तीनों चीज़ों को देखा था कि कंटेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है और टोन कैसी होनी चाहिए. इधर यू आर गोइंग टू यूज़ अ स्टफी टोन और इनफॉर्म और जो है वो कन्वर्जेशनल टोन, स्टफी टोन या फिर जो है वो अनप्रोफेशनल टोन. तो ये जो है तमाम चीज़ें जो हैं, व्हेन यू स्टार्ट योर रिवीजन प्रोसेस देन यू फोकस ऑन द कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड टोन. In modern times, readers want that messages should convey very important content clearly and quickly. Reader expect this thing that the message should convey important contents very clearly and very quickly. So to evaluate the content of your message, make sure that जब आपने सबसे पहली चीज़, हमने 3 चीज़ें आपने जो है एवेल्यूएट करनी है जब आपने रिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करना है. नंबर 1 इज़ कंटेंट, नंबर 2 इज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड 1 इज़ टोन. अभी मैं बात कर रही हूँ कंटेंट की. जब आपने अपने कंटेंट को रिवाइज करना है, तो जब आपने अपने कंटेंट को इवेल्यूएट करना है, तो टू इवेल्यूएट योर मैसेज कंटेंट, मेक श्योर दैट इट इज़ एक्यूरेट, इट इज़ रेलिवेंट टू ऑडियंस नीड्स एंड इट इज़ कम्प्लीट. जब ये तीनों चीज़ें आप उसमें चेक कर लेंगे तो इट मीन्स दैट द कंटेंट ऑफ योर मैसेज इज़ करेक्ट. उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपने चेक करनी है ऑर्गेनाइजेशन. आफ्टर रिवाइजिंग द कंटेंट ऑफ योर मैसेज, रिव्यू इट्स ऑर्गेनाइजेशन. जब आपने कंटेंट चेक कर लिया अपने मैसेज का, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि आप चेक करेंगे उसकी ऑर्गेनाइजेशन को. और ऑर्गेनाइजेशन अब कैसे चेक करनी है आपने? रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन बाय आस्किंग योर सेल्फ दीज फ्यू क्वेश्चन. अब अपने आप से ये 3-4 सवाल करेंगे और उससे आप ये देखेंगे क्या ये 3-4 चीज़ें जो हैं, क्या ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन योर राइटिंग, आर प्रेजेंट इन योर कंपोज्ड मैसेज. क्या ये 3-4 चीज़ें जो है आपके रिटर्न मैसेज में जो है वो मौजूद है आपके ड्राफ्ट में? तो जब अगर ये 3-4 चीज़ें उसमें मौजूद हैं, इट मीन्स दैट आपका जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर मैसेज है इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. सो यू कैन चेक और एवेल्यूएट द organization of your message by asking these questions to yourself. Number 1 is that are all your points covered in the most logical and convincing order? क्या आपने जितने points डिस्कस किए हैं वो लॉजिकल हैं, कन्विंसिंग ऑर्डर में डिस्कस किए हैं? नंबर 2 is do the most important ideas receive the most space and greatest emphasis? जो आपने अहम बात करनी थी, आपने जो आपके सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया था, क्या उसको उतनी एनफ स्पेस मिली है आपके मैसेज में? डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियाज रिसीव द मोस्ट स्पेस एंड ग्रेटेस्ट एम्फसिस. एंड द थर्ड वन इज़ दैट आर एनी पॉइंट्स सेपरेटेड अननेसेसरीली? क्या तमाम पॉइंट्स जो हैं वो आर एनी पॉइंट्स रिपीटेड अननेसेसरीली? क्या कोई पॉइंट बार बार रिपीट तो नहीं हो रहे? क्या उसमें कोई रेपिटिशंस तो नहीं है? आर डिटेल्स ग्रुप्ड टुगेदर लॉजिकली? क्या जितनी भी आपने डिटेल लिखी है वो उसमें एक ऑर्डर है, जो है उनमें एक लिंक फील हो रहा है, उनमें लॉजिकली जो है वो दूसरे से कनेक्टेड हैं, और जो है वो आर ऑल डिटेल्स ग्रुप्ड टुगेदर लॉजिकली. So by asking all these questions, you can evaluate the organization of your message. And third thing is that tone. Next, after checking or after evaluating your content, your organization, then you will evaluate your tone. Next, whether you have achieved the right tone for your audience. Is your audience writing formal enough to meet the audience expectations?
क्या आपने जो राइटिंग लिखी है क्या वो इतनी, उसमें आपने कन्वर्जेशनल टोन यूज़ किया है, क्या वो इतनी फॉर्मल एनफ है कि इट कैन मीट द नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर ऑडियंस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर ऑडियंस. सो देन यू विल, द थर्ड स्टेप, इन द थर्ड स्टेज you will evaluate the tone of your writing. And finally you spend some time to evaluate that the beginning and ending of your message. The beginning and ending of the message is also very important because the beginning and the ending usually have the greatest impact on your reader. क्योंकि जो बिगनिंग और एंडिंग होती है वो आपके जो रीडर होता है उसके ऊपर एक बहुत ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट होता है इस चीज़ का कि आपकी बिगनिंग कैसी है, हाउ यू बिगिन योर राइटिंग एंड हाउ यू आर कंक्लूडिंग इट, कि आपने उसको कैसे अपनी राइटिंग को स्टार्ट किया और कैसे आप उसको कंक्लूड करें. तो आफ्टर इवैल्यूएटिंग कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड टोन, you give some time to, and you spend your some time to evaluate beginning and ending of your paragraph or of your message. So the beginning and ending usually have the greatest impact on your reader. Be sure the first paragraph is relevant, interesting and interesting. और आपने कोशिश करनी है कि जो आपका पहला पैराग्राफ है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो और बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो. The opening should convey the subject and purpose of your message. So this is evaluating your content, organization and tone. Okay, how you can evaluate your content, your organization and tone, and at the end you will give some time to evaluate the beginning and ending of your message, because beginning and ending also are very important because it creates a greatest impact on your readers, and the beginning and the opening of your writing should be clear. It should be relevant, it should be interesting, and it should convey the subject and the purpose of your message. Now the next thing is that you need to evaluate your first writing, evaluating, editing and revising the work of other people. कि उसके बाद जो है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि you need to evaluate, edit and revise द अदर राइटर्स वर्क. आपको दूसरे जो राइटर्स होते हैं उनके काम को भी जो है वो कहा जा सकता है कि आप उनके काम को जो है वो पढ़ें, उसको जो है एवैल्यूएट करें. फिर जब आप एवैल्यूएट करेंगे तो उनके काम में भी आप इन तीनों चीज़ों को पहले एवैल्यूएट करेंगे, उसके कंटेंट को, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को और उसकी टोन को. लेकिन एट मैनी पॉइंट्स ऑफ योर कैरियर यू विल बी आस्क्ड टू एवैल्यूएट, एडिट और रिवाइज द वर्क ऑफ अदर पीपल. व्हेन यू एवैल्यूएट, एडिट और रिवाइज someone's work, someone else work, जब आप किसी दूसरे के वर्क को इवैल्यूएट करते हैं, उसको एडिट करते हैं या आप उसको रिवाइज करते हैं, तो यू शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट योर जॉब इज़ टू हेल्प दैट पर्सन सक्सीड, नॉट टू इम्पोज योर ओन स्टाइल. आपका काम सिर्फ उसको सिर्फ उसको इवैल्यूएट करना है, एडिट करना, रिवाइज करना है. यू आर नॉट गोइंग टू इम्पोज योर ओन स्टाइल. आपने ये नहीं करना कि आप उस पर अपना स्टाइल जो है वो इम्पोज करने लग जाएं. सो इन अदर वर्ड्स, मेक श्योर your input focuses on making the piece more effective. Secondly, make sure you understand the writer's intent before you begin suggesting or making changes. यानी कि जब आप किसी दूसरे का काम जब इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसको एडिट कर रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं, तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है. मेक श्योर कि जो आपका फोकस इस चीज़ पर हो कि आपने उस राइटिंग को मज़ीद जो है, हाउ कैन यू मेक दैट पीस ऑफ राइटिंग मोर इफेक्टिव, कि आप उस पीस ऑफ राइटिंग को एडिट करने के बाद या इवैल्यूएट करने के बाद या रिवाइज करने के बाद उसको मज़ीद कितना इफेक्टिव बना सकते हैं. सेकेंडली जो है, यू नीड टू फोकस ऑन दिस थिंग. मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड द राइटर्स इंटेंट, कि आप ये देखें कि राइटर्स ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम किया, राइटर की इंटेंशन क्या थी. यू शुड कीप इन योर माइंड द राइटर्स इंटेंशन एंड द राइटर्स इंटेंट बिफोर यू बिगिन suggesting any changes or you make any changes in draft. जब आप दूसरों के काम को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, उसको एडिट कर रहे होते हैं और उसको रिवाइज कर रहे होते हैं, तो जब उसमें कोई भी चेंजेस करते हैं तो और या कोई भी सजेशंस देते हैं, तो उस अपनी सजेशंस देने से पहले और अपनी चेंजेस जो है करने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द राइटर्स इंटेंशंस, द राइटर इंटेंट, द राइटर्स पर्पज़ ऑफ राइटिंग. जिस राइटर ने वो लिखा उसका पर्पज़ ऑफ राइटिंग क्या था, उसके इंटेंशन क्या थी उसको लिखने के लिए. सो दिस इज़ we have discussed that revising your message or evaluating your first draft, or why it is important, why it is necessary to evaluate your first draft. आपका जो पहला ड्राफ्ट है उसको evaluate करना जो है वो क्यों ज़रूरी है, उसको रिवीजन जो है, रिवीजन प्रोसेस क्यों ज़रूरी है, और केयरफुल रिवीजन का क्या इम्पैक्ट होता है. अगर पुअर क्वालिटी मैसेज हो तो वो किस किस्म का जो है वो इम्प्रेशन क्रिएट करता है. और फिर इसमें जो है वो हमने उसके बाद जो हमने ये डिस्कस किया कि एवैल्यूएटिंग. नाउ आई एम समराइजिंग द लेक्चर, द कंप्लीट लेक्चर.
कि हमने जो भी पूरा लेक्चर डिस्कस किया मैं उसको दोबारा से एक दफ़ा जो है वो आपके साथ जो है वो उसको समराइज़ कर रही हूँ। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि आपने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट जब एवेल्यूएट करना है तो यू नीड टू एवेल्यूएट और यू नीड टू चेक दीज 3 थिंग्स, योर कंटेंट, योर ऑर्गेनाइजेशन एंड योर टोन। ठीक है जी, वो भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि आपने टोन कैसे चेक करनी है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चेक करनी है और कंटेंट जो है वो उसको कैसे चेक करना है। और कंटेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, कंटेंट आपने ये चेक करना है, क्लियर होना चाहिए, क्विक होना चाहिए, उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए ऑडियंस की नीड्स के और कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद टोन चेक करना आपने, उसके बाद चेक करना है ऑर्गेनाइजेशन को और टोन को। और उसके बाद अगर आप इफ़ यू आर एवेल्यूएटिंग अदर पीपल्स वर्क देन you need to keep these 2 things in your mind ke before making any changes or suggesting anything. First you should think that you should understand the writer's point of view, the writer's intent, and make sure that you and the second thing is that make sure that you are focusing on making the piece of writing more effective.